ಆರಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಘನವುಳ್ಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಪ್ಪ. ಆರಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ತಂದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡು. ನೀನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಆ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ವಿವೇಕವನ್ನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಬೋಧಿಸುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಪಾಸ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು. ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ನೀನು ಬಾಯಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಿಯರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡು. ಸಮಯೋಚಿತವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಹಾಗೆ ತಂದೆ, ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸು. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. मुझे जो ये अवसर प्रदान किया गया उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को और हमारे चर्च के प्रचारक और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मैं अपना नमस्कार करता हूँ, मतलब धन्यवाद देता हूँ। एक छोटा सा मैं अपना मतलब रियल स्टोरी एक बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो आज का टॉपिक है, मैं पिछले साल जून 26 को ये मतलब लेसन बताने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 24 ऑफ जून को। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस कंडीशन में था कि मैं जा नहीं पाया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। सो वी प्लान्ड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। जैसे कि ब्रदर ने कुछ वीक्स पहले हमको ये बताया था कि वी हैव टू प्लान, कि प्रिपरेशन करना चाहिए। सो हम हर एक छोटी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सपोज अभी अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम, समझ आ रहा है ना सबको? ओके, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, राइट? सो अभी अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम क्या सोचेंगे कि पढ़ने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, या फिर मतलब जॉब करेंगे तो क्या होगा, या फिर किसी विदेश में जाएंगे, या फिर कहीं, ये सब हमारा प्लान रहता है। बट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो बहुत ही मतलब उसको हम बोल नहीं सकते कि इस दिन आ जाएगा, वो है मौत, मतलब डेथ। हम उसके लिए कभी भी प्रिपरेशन नहीं करते। सो ये मेरा आज का टॉपिक है, बट मेरे एज के हिसाब से ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बट मतलब मैं इसको वहां बताने वाला था जहां पर बारसी होता है, मतलब 1 साल का ये होता है, वहां पर मैं इसको बताने वाला था। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग बहुत सारा प्लान करते हैं कि मतलब मैंने, जैसे कि मेरे यहाँ पर अगर फिजिकल डेथ होता है तो उसके लिए मैंने क्या प्लान किया कि आई हैव डन द टर्म इंश्योरेंस फॉर माई कंपनी, कि मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चे को, मेरे बीवी को
कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा मतलब एक प्लान है। बट मौत का क्या है, मरने के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसका प्लान हम में से आई थिंक कोई नहीं करता। इवन हम क्रिश्चियनिटी में है, बट इवन हमारा कोई भी गारंटी नहीं कि वी विल गो देयर। तो मतलब इसमें लिखा है, मतलब बाइबल में ये लिखा है कि मनुष्य घास के समान है जो सुबह खिलता है और शाम को सूख जाता है। सबको पता है ये, मतलब साम्स 103 15-16 में ये लिखा हुआ है, तो वहां आप देख सकते हैं, मतलब पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप बाद में देख सकते हैं, सबको पता है ये। तो दिस इज अ थिंग। एक अगर कोई लूक्स 12 चैप्टर 16 to 21, तो यहाँ पर वो, मतलब मैं आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना उसको। सो ल्यूक 12 चैप्टर 16 to 21, वहां पर ये है कि एक मनुष्य है, उस समय में खेती होता था, ठीक है। तो उस खेती में क्या है कि बहुत सारा फसल हुआ, फसल इतना हुआ कि उनको वो मतलब स्टोर करने के लिए प्लेस नहीं था, इतना फसल हुआ। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं सालों साल तक मैं जमा करके रखूंगा, फिर मैं बाद में उसका उपयोग करूंगा। बट परमेश्वर ने ये बोला कि हे मूर्ख, मैं तुझे आज के आज लेके जा रहा हूं, मुझे तेरा प्राण आज के आज चाहिए। तो वहां पर क्या है कि हो गया उसका प्लान जो यहाँ था खत्म, बट यहां से जाने के बाद क्या है उसका, राइट। तो वो हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि हम प्लान किए किस चीज का, यहाँ फिजिकली क्या करना है उसका हमने प्लान किया, बट जो अनंत है, जो इटर्नल है, उसके लिए हमने कुछ प्लान किया, मुझे नहीं पता। वी विल कंक्लूड एट द एंड। सो यहाँ पर हम लोग ये सोच सकते हैं कि मैं अमीर हूं तो मेरा मौत नहीं होगा, ये गरीब है तो इसका मौत हो जाएगा, या फिर कोई शक्तिशाली है तो उसका मौत नहीं होगा, या फिर कोई ये। तो अभी अगर आप देखोगे जो ऑल द रिच पर्संस लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, ये सबका मौत भी होगा। इवन टाटा जी का तो मौत हो चुका है, ठीक है। तो मनी कैन नॉट सेव। सो बाइबल क्या बोलता है उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। एक्लेशियस 9 चैप्टर 2nd and 3rd वर्स, अगर कोई पढ़े तो अच्छा रहेगा। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು, ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ದುಷ್ಟರಿಗೂ, ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೂ ಶುದ್ಧನಿಗೂ ಅಶುದ್ಧನಿಗೂ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಮಾಡದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿ, ನಿರ್ದೋಷಿಯಂತೆ ದೋಷಿ ಇರುವನು, ಆಣೆ ಇಡುವವನ ಹಾಗೆ ಆಣೆಗೆ ಅಂಜುವವನಿರುವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂಬ ಸಂಕಟವು ಲೋಕಗಾಢದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನರವಂಶದವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ತುಂಬಿದೆ. ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಮೂಢತನವು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದಿರುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇತಲತ್ವವೇ ಗತಿ. सो सभी का, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक दिन मरना है। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 3rd and 19th वर्स देखिए, चैप्टर 3rd and 19th वर्स वहां देखें, तो हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। यू कम फ्रॉम द डस्ट एंड यू विल गो ऑन टू द डस्ट। तो 3rd चैप्टर 19th वर्स। सो जेनेसिस ನೀನು ತಿರುಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಬೆವರುತ್ತಾ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲವೋ, ನೀನು ಮಣ್ಣೆ, ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು। हाँ, सो हम मतलब कहाँ से आए हैं, हम मिट्टी से आए, तो वी विल गो ऑन टू द डस्ट इटसेल्फ ओनली। तो सभी का, किसी का भी नहीं। इवन अगर बाइबल में बहुत ज्यादा दिन कौन जिए है, किसी को पता है? ज्यादा लॉन्ग लाइफ मेथुशेला, ठीक है। तो उनका भी डेथ आफ्टर सम टाइम हुआ ही हुआ है। इवन यहाँ पर जब हमारे मसीह यीशु मसीह यहाँ जब इस दुनिया में आए, तो उन्हें दुनिया में आने के बाद उन्हें अपना देह त्यागना पड़ा, बट उनका रिजरेक्शन हुआ आफ्टर 3 days। तो मतलब लेकिन यहाँ जब आए तो उनका देह उन्हें त्यागना पड़ा। तो सबका, इवन यहाँ पर यीशु मसीह है, उनको भी देह त्यागना पड़ा, हमको भी एक दिन देह त्यागना पड़ेगा। तो बाइबल के हिसाब से व्हाट इज द एज इनटू दिस अर्थ, बाइबल एज 60 और 70, मतलब 70-80 ऐसा बोल सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं उसको भी। साम्स 90th चैप्टर एंड 10th वर्स। ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಕಾಲವು 70 ವರ್ಷ, ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ 80, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರ ಅದು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ। सो क्या है कि हमारा एज यहाँ पर 70 ईयर्स है, या फिर हम प्रॉपरली हैं, अगर पुराने जमाने के लोग देखेंगे जो हमारे पिताजी हैं, अगर उनका जो खाने पीने का, रहन सहन का हम देखेंगे, तो दे कैन लिव अप टू 80-90 ईयर्स एज वेल। बट 100 साल भी जिएंगे, बट एवरेज, ऑन एन एवरेज एज कितना है, 70 और 80 ईयर्स। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि अगर कोई राजा है या कोई भी है,
उनका भी डेथ आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दाऊद जी के पुत्र, दाऊद कौन है, मतलब डेविड, तो ही इज अ किंग। तो उनके पुत्र का जब निधन हुआ तो वो उपवास रख के पूरा प्रार्थना करके किए, बट अंत में उन्होंने क्या बोला कि मैं उनके पास जा सकता हूं बट वो मेरे पास वापस नहीं आ सकते। तो यही है कि हमको एक दिन वहां जाना है, और हम यहाँ पर क्या हैं, परदेसी हैं, वी आर जस्ट ट्रैवलर्स। सो वन डे वी आर इन अ जर्नी, सो हमको एक दिन वहां जाना है, बट उस जाने का प्रिपरेशन क्या हम कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन है। अगर हम जैसे कि हम सबने यहाँ पर क्रिस्त मतलब मसीह को हमने एक्सेप्ट किया है, बट जो मसीह को एक्सेप्ट नहीं किए उनका क्या, तो वो एक दो वर्स उसमें भी देख लेते हम लोग। हिब्रू 2 चैप्टर 14-15। तो जो लोग मतलब मसीह को नहीं मानते, मतलब जो मसीह को एक्सेप्ट नहीं किए, उनको क्या होगा कि मौत का उन्हें भय होता है, डर, दे आर हैविंग द फियर ऑफ डेथ। तो उनको मौत का भय होता है। बट हमको क्या है, एक होप है कि ओके, अगर इफ वी लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम वहां जा सकते हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है। सो एक अगर कोई पढ़े तो पढ़ सकते हैं। ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆಯೇ ಆತನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮರಣ ಭಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾದನು। ओके ओके, थैंक्स। सो यहाँ पर क्या, जो भी शरीरधारी है सबको एक न एक दिन मरना है, बट जो मसीह को नहीं एक्सेप्ट किया है, जो मसीह को नहीं माना है, तो उनको क्या रहेगा, हमेशा मौत का भय रहेगा, मतलब डर रहेगा उसका। दे आर फियर ऑफ डेथ, ऑलवेज दे विल बी हैविंग द फियर ऑफ डेथ। बट हमको क्या है, एक निरीक्षण है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, होप है, उम्मीद है कि अगर हम हमारा यहाँ पर डेथ हुआ तो वी विल गो। बट वहां कंडीशन है कि इफ वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो ही हम वहां पहुंचेंगे, अदरवाइज इट इज रियली इम्पॉसिबल। सो अभी हमने क्या क्या देखा, धनी और मतलब अमीर आदमी और गरीब आदमी सबका मृत्यु पॉसिबल है। तो एक और, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उन्होंने मतलब एक बताया था कि मतलब ल्यूक 16 चैप्टर 19 to 31। सो आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट, नो नीड टू रीड, आप लोग घर जाके पढ़ लीजिएगा इसको। तो उसमें क्या है, एक लाजरस था और एक था रिच पर्सन। तो दोनों ने मतलब लाजरस ने यहाँ जो जीवन बिताया वो बहुत ही कठिनाई में था, मतलब बहुत ही गरीबी में बिताया उन्होंने। तो हम ये बोल सकते हैं एक गरीब था और एक अमीर था। अमीर ने अपना जीवन कैसे, ही वॉज लिविंग लेविशली, कि कार में घूमना, मतलब ड्रिंक करना, एवरीथिंग ही हैज डन, बट गॉड हैज गिवन एवरीथिंग टू हिम। ये वहां ये जब थे, बट जब दोनों का मौत हुआ, दोनों के मौत होने के बाद में जब ऊपर गए तो दोनों का दो डेस्टिनेशन था। एक लाजरस कहाँ बैठा था, अब्राहम के साथ था, और रिच पर्सन कहाँ था, वो एक वेदना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बोल सकते हैं नर्क में बैठा था, ऐसा बोल सकते हैं। बट इट इज ऑब्वियसली नॉट अ नर्क, बट नर्क बोल सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो वहां पर क्या है कि लास्ट में फ्रॉम 29 से अगर कोई पढ़ सकता है, 28 और 29 से। ನನಗೆ 5 ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಈ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರು, ಬಾರದಂತೆ ಅವನು ತಾನು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲಿ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಅನ್ನಲು ಅವನು, ತಂದೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ಆಗಲ್ಲ, ಸತ್ತವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂದನು। तो हमारे यहाँ मरने के बाद में जो स्वर्ग में जाएगा उसको भी हम देखेंगे, अगर हम नर्क में जाते हैं तो स्वर्ग में जो है उसको देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अगर हम नर्क में हैं, सॉरी स्वर्ग में हैं, तो नर्क में कौन कौन है ये भी हमको दिखेगा। तो एक दिन हम वहां जब जाएंगे तो एक दूसरे को देखेंगे, कौन कहाँ है ये नहीं पता, तो वहां जाने के बाद में हम जरूर एक दूसरे को देखेंगे। सो देखने के बाद में यहाँ पर अभी अमीर ने क्या बोला, ही वॉज नॉट एबल टू इवन ड्रिंक। यहाँ जब था तो क्या किया, ही ड्रंक अल्कोहल्स, ही आई मीन लिव हिज लाइफ लैविशली, बहुत एंजॉय किया, ही हैज डन एवरीथिंग। बट वहां जाने के बाद में मुझे पानी यहाँ डालो, मतलब अब्राहम को बोल रहा है कि हाँ एक बूंद पानी अब दीजिए, एक बूंद, आप
ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए भी वो तरस रहा है। तो ऐसा वहां पर है। एंड यहां पर का 60-70-80 साल है, बट वहां पर क्या है? एटर्नल, अनंत है। तो वहां अनंत जीवन है, यहाँ पर ये। तो हम इसके लिए प्रयास करते हैं, बट वहां के लिए हम प्रयास नहीं करते। तो अगर हमारा मृत्यु मसीह में है, मतलब अगर हमने मसीह को एक्सेप्ट किया है, इफ वी आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के हर एक वाक्य के अनुसार अगर हम जी रहे हैं, जीने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा लाइफ कैसा हो सकता है, उसके लिए हम कुछ कुछ वचन देखेंगे। Psalms 23rd chapter 4th verse. ಅವನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಘನತೆಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. So क्या है यहाँ पर? Even if I walk into the valley of death, I mean shadow of valley of death, मुझे डर नहीं है। मतलब कितने भी मतलब मौत, अभी अगर मौत भी आने वाली भी है तो मुझे डर नहीं। बट इज इट रियल कि अभी अगर हम कोई भी डेथ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम डर जाते हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत डरता हूँ कि अगर हम डरते हैं, इसीलिए तो टर्म इंश्योरेंस करते हैं। तो वही है कि मैं तो बहुत डरता हूँ। इवन जब मेरे पिताजी का भी रिसेंटली तबीयत खराब था तो आई फियर्ड कि माय डैड विल नॉट कम बैक, ऐसा मुझे डर था। बट यहाँ पर मतलब अगर हम मसीह में हैं, अगर मसीह के वचन के अनुसार हम जी रहे हैं, तो हमें डरने का जरूरत नहीं। बट हम डरेंगे, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी विल फियर, बट डरने का जरूरत नहीं है, ऐसा इसमें है। तो एक और देखते हैं कि जैसे कि प्रेरित पौल ने जब जीवन उनका जब बदला, मतलब पहले का जीवन अलग था, बाद में जब जीवन बदला उनका, तो उन्होंने ऐसा जिया कि वो बोल पाए कि डाइंग फॉर क्राइस्ट इज प्रॉफिटेबल फॉर मी। तो एक बार वो देखते हैं हम, फिलिपियंस 1st chapter 21 वर्स। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो उन्होंने प्रॉफिटेबल दिखा, बट हम देखेंगे, कोई भी देख पाएगा कि हम मतलब 10 साल के बाद में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या फिर बिजनेस करेंगे, बिजनेस से प्रॉफिट आएगा। तो कल मैं और एक हमारे देव भाई थे, दोनों हम मतलब कार में गए थे, दूसरे मतलब क्या बोलते हैं कुर्ग साइड गए थे हम थोड़ा। तो उधर हम बात कर रहे थे कि मैसूर में कैसा बिजनेस होना चाहिए, क्या होगा तो अच्छा रहेगा, कैसा प्रॉफिट आएगा, ऐसा हम देख रहे थे। मतलब हम लोग किस प्रॉफिट के बारे में देख रहे हैं? यहाँ के प्रॉफिट की। अभी सपोज अगर मेरा जॉब गया, क्योंकि अभी बहुत सारा ले ऑफ्स हो रहा है, तो फॉर सपोज अभी मेरा जॉब गया, तो मैं कौन सा ऐसा बिजनेस करूं कि मैं सस्टेन कर पाऊं। तो ये हम ऐसा सोच रहे थे। तो मैंने बोला देव भाई को, देव भाई 5 साल तक हम जीवित रहेंगे? तो बोले सही बोल रहा है तू, बट सोचना तो पड़ेगा। तो सोचना गलत नहीं है, बट इतना भी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं मर जाऊंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, तो ये सब हमारा ओवर थिंकिंग है। तो हम किस चीज के बारे में सोचते हैं? यहीं के बारे में सोचते। तो हम लोग वो प्लान कर रहे थे कि क्या करना चाहिए बोल के। बट यहाँ पर पौलुस जो चेंज हुए, मतलब पौलुस के पहले का जीवन कैसा था, पौलुस के बाद का जीवन, मतलब जो मसीह में आए उसके बाद का जीवन कैसा, कंप्लीटली 360 डिग्रीज चेंज इज देयर। सो वो ये बोल पाए कि डेथ इज प्रॉफिटेबल। तो हम ऐसा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ ऑन दैट वे, बट मैं नहीं बोल पाऊंगा। बट वो ऐसा जी पाए, वो ऐसा बोल पाए, बट मैं ऐसा नहीं बोल पाए। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, जो फर्स्ट मर्डर है, जो जैसे ही हमारा सुसमाचार स्टार्ट हुआ, जैसे कि क्राइस्ट का यहाँ पर क्रूसीफाइड होने के बाद में जैसे ही वो रिजरेक्शन हुआ, रिजरेक्शन होने के बाद में जैसे ही चर्च का ये हुआ, मतलब क्या बोलते हैं स्थापना हुआ, चर्च की स्थापना होने के बाद में फर्स्ट मार्टायर कौन था? स्टीफन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, हम कुछ कुछ वर्ड्स वहां पर देखते हैं एक बार। सो एक्ट्स 7 चैप्टर फ्रॉम द वर्स 55। सो वहां पर क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया स्टीफन ने, तो वहां पर क्या हुआ, जो लोग थे वहां पर एग्रेसिव हुए। एग्रेसिव होके क्या किए, स्टोन से उनको मार के, मतलब स्टोन उनके ऊपर फेंक के, मतलब उनको पहले तो बाहर निकाले नगर से बाहर निकालने के बाद में स्टोन्स मार मार के उनको मार डाला गया। बट उन्होंने एक बात बोला 60th वर्ष में, नहीं हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ब्रदर, नो प्रॉब्लम। सो 59th वर्ष से, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरा
आत्मा को ग्रहण कर। सो वो इस कॉन्फिडेंस में बोल पाए कि एक्सेप्ट माई स्पिरिट, मेरा सोल, तो मेरी आत्मा को तुम ग्रहण करो। अगर हम ऐसा जीवन जिए यहाँ पर, तभी हम बोल पाएंगे कि हमारे आत्मा को आप ग्रहण करो। नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बोल पाएगा कि मसीह को कि हे प्रभु मेरा आत्मा ग्रहण करो। वी कैन प्रे, बट आई डोंट थिंक सो कि मरने के टाइम में हम ये बोल पाएंगे कि करो। उसके बाद में क्या है, फिर उन्होंने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। सो व्हेन ही वाज डाइंग ही प्रेड कि ये जो कर रहे हैं, इन्होंने जो किया उन पर ये पाप मत लगाना। तो इनका कैरेक्टर कैसा था, बिकॉज ही इज लिविंग इनटू द क्राइस्ट, इनका कैरेक्टर ऐसा था कि जो इनको हानि पहुंचाया उसको भी मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बट हमारा कैसा है, भाई भाई का जमता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, भाई भाई का जमता नहीं है किसी से भी, मतलब दोस्त दोस्त का नहीं जमता, भाई भाई का नहीं जमता, एम्प्लॉइज भी, मतलब अगर ऑफिस में हम बैठे हैं तो आजू बाजू में भाई भाई बोल के ही बात करेंगे, बट अंदर अंदर कुछ और चलता है। सो दैट इनर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम मतलब मसीह को तो हमने एक्सेप्ट किया, बट क्या मसीह ने हमको एक्सेप्ट किया? तो यही प्रिपरेशन है कि अगर मसीह हमको एक्सेप्ट करें तो क्या करना है, कैसे जीना है। जैसा स्टीफन ने जिया अपना जीवन, वैसा हमें जीना है। तो अभी जैसे कि आज पढ़ा ल्यूक 23rd चैप्टर वर्स 43। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफ, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो अगर 39th वर्स से हम चले, वहां पर जब यीशु प्रभु को क्रूसीफाइड किया जा रहा था, अभी आप यहाँ पर 3 लोग हैं, 2 चोर हैं और एक हमारे यीशु प्रभु है, ठीक है। जब उनको क्रूस में चलाया गया तो ये दोनों को कैसा क्रूसीफाइड किया गया? ये दोनों चोर को बहुत ही न्याय मतलब जो वहाँ रूल है, जो वहाँ लॉ है, उसके हिसाब से उनको क्रूसीफाइड किया गया। बट यहाँ पर यीशु मसीह को कैसा किया गया? अन्यायपूर्ण से। तो वहां पर जो 2 चोर हैं, एक चोर का कैरेक्टर कैसा है कि वो इनके ऊपर मॉकिंग, ही वाज मॉकिंग, कि उनको चिढ़ा रहा है कि हाँ ऐसा तू तो परमेश्वर है, क्या है, ये है, वो है करके। बट एक और जो दूसरे साइड था, उन्होंने क्या किया? ही एक्सेप्टेड द क्राइस्ट एट दैट मोमेंट। और वो कहाँ गए? एक बार लास्ट वर्स हम अगर देखेंगे तो 42 से, तब उसने कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। मतलब उनका जो हार्ट था, उनका जो विश्वास था, वो इमीडिएटली उनके साथ चले गया। मतलब यहाँ ये कौन बोल रहे हैं? मसीह बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो हुआ है, बट मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग वहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो अभी अगर आप देखा जाए कि हम मसीह में हैं, अगर पुराने ओल्ड टेस्टमेंट में हम जाते हैं, पुराने नियम में अगर जाते हैं, तो हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल? साउल। सो गॉड इलेक्टेड हिम एज अ किंग, फर्स्ट किंग ऑफ द इजराइल, बट उन्होंने अपना जीवन उस हिसाब से जिया। पता नहीं अभी अगर वो वहां मतलब आफ्टर द डेथ वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे नहीं पता। बट क्या उन्होंने अब परमेश्वर के हिसाब से जिया? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ करने बोला, उन्होंने कुछ किया। वो इतने मतलब ऐसे परिस्थिति में चले गए कि वो दाविद को भी, मतलब डेविड को भी he tries to kill, he keep doing his trial to kill him। तो उन्होंने ट्राई किया, बट परमेश्वर ने एक्चुअली डेविड को बचाया। बट शुरू में जो सॉल का परिस्थिति था और बाद में जो हुआ, इवन ही इज इन गॉड ओनली, क्योंकि गॉड ने उनको इलेक्ट किया था। बट वो कैसे हो गए? ऐसा हुआ। बट यहाँ पर उस चोर ने अपना मतलब जो भी चांस था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और परमेश्वर के साथ चले गए। तो अभी हमारे पास में, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, ओके। सो अभी हमारे पास में 2 रास्ते हैं, हमको जो अभी तक ही समझ आया। एक क्या है? स्वर्ग है, और एक क्या है? नरक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? वहां जाने के लिए क्या डिफरेंस है? कि हम अच्छा जिएंगे, अच्छा सैलरी आएगा, या फिर अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा पैसा आएगा तो हम जाएंगे, या फिर क्या है? सो एक वर्स है कि रिवलेशन 21st चैप्टर 27th वर्स। सो हमारे अच्छे काम हमको वहां नहीं पहुंचा सकते। कि अगर हम परमेश्वर के वाक्य के अनुसार अगर हम चल रहे हैं,
अगर परमेश्वर के जो जीव ग्रंथ है, जीवन का पुस्तक है, अगर उसमें परमेश्वर ने हमारा नाम लिखा है तो ही हम वहां जाएंगे, मतलब परमेश्वर के पास में स्वर्ग में हम जाएंगे। नहीं तो एक और प्लेस है, वो भी अनंत है, ये भी अनंत है। तो हम कौन से अनंत में जाएंगे उसके लिए हमारा प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। कि अभी हमको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ कोई पढ़ेगा क्या 21-27? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯಾದದ್ದೊಂದೂ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಜೀವಭಾಗ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರದವೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರುವರು. तो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ हिंदी में। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, केवल वही लोग वहां पर प्रवेश करेंगे। तो अभी मतलब उस जीवन के पुस्तक में अगर हमारा नाम आना है तो व्हाट वी हैव टू डू? सो वी हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो एक और अभी हम सोच सकते हैं कि मैंने क्रिस्त को तो एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तो चले ही जाऊंगा, परमेश्वर के पास चले ही जाऊंगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट मैथ्यू 25:31-46 मैं जस्ट यहाँ ब्रीफ कर रहा हूँ कि हमने हमारे यहाँ हम यहाँ मरने के बाद में गॉड विल फिल्टर अस। तो वहां पर गॉड चुनेगा कि कंकड़ मतलब अच्छे, मतलब जैसे कि एक चावल है, चावल से हम कंकड़ जैसे अलग करते हैं। गॉड अभी हम सारे हैं यहाँ पर, सारे को जाने का चांस है, देयर इज अ चांस। जैसे कि रिजर्वेशन टिकट में जैसे कि ब्रदर ने बोला था कि रिजर्वेशन टिकट अगर वेटिंग में है तो वी कैन नॉट ट्रेवल, कंफर्म होना चाहिए। तो अभी राइट नाउ एवरी वन ऑफ अस इनटू द वेटिंग लिस्ट। सो अभी कंफर्म हुआ नहीं हुआ, कब होगा वो करेंगे। अगर हम वेटिंग लिस्ट में तो चुन के फेंक देंगे, कोई भी कंकड़ क्या करता है उससे वहां से चुन के फेंक देता है। सो वैसे यहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है क्या थोड़ा बहुत? ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಆತನ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಕುರುಬನು ಆಡುಗಳನ್ನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುಗಳನ್ನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವನು. ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತರು, ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಯಾವಾಗ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು. ब्रदर फाइन। सो यहाँ पर ये क्या है, जजमेंट का डे है, ठीक है। जजमेंट के डे में हम सब वहां पर उपस्थित होंगे। तो जो मर गए हैं वो भी वहां से उपस्थित होंगे परमेश्वर के पास में। तो वहां अभी जजमेंट हुआ नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन है कि कौन कहां जाएगा, इसका कंफर्मेशन है। आफ्टर वी डाई इमीडिएटली इसका कंफर्मेशन रहेगा। बट जजमेंट डे में गॉड जैसे बताया ना का कौन प्रॉपर जिया है कौन नहीं जिया, सो ही विल जस्ट फिल्टर एवरीबॉडी। सो अभी ये है, मतलब मैं आई एम जस्ट कंक्लूडिंग फाइनली कि यहाँ पर दो रास्ता है, मतलब दो डेस्टिनेशन है और दोनों अनंत है, एटर्नल। वी आर हैविंग द टू एटर्नल डेस्टिनेशन, one is the hell, another one is the heaven. So we know that even if we are living, even if we are coming into the church, reading the Bible, doing the things, I don't know whether we will go or not, because we saw few of the examples here कि जैसे कि सॉल का एग्जाम्पल देखा हमने पुराने निबंध के अनुसार कि उन्हें परमेश्वर ने इलेक्ट किया, बट ही डिड नॉट, आई डोंट नो वेदर ही रीच और नॉट, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ जज। बट उनका जीवन बाद में कैसा हो गया ये आप सबको पता है। अभी और एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर
हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि द बुक ऑफ लाइफ में गॉड हैज टू रिटन आवर नेम, वही लोग वहां जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आज का हमने पढ़ा था, तो वहां दो लोग थे, दो चोर थे। एक चोर ने गॉड को एक्सेप्ट किया और एक चोर ने, गॉड उनके बाजू में था, जैसे कि अभी हम हैं, गॉड हमारे साथ हैं, बट उनके साथ होके भी चोर वहां नहीं जा पाया। पहला चोर, जो दूसरा चोर था वो जा पाया। तो हम पहले चोर के जैसे रहें या दूसरे चोर के जैसे रहें, ये हमको डिसाइड करना है। तो मैं यही बोलूंगा कि प्लान आवर डेथ एज वेल, कि मरने के बाद में, जैसे कि अगर पुराने निबंध में अगर कुछ कुछ चीजें आप देखोगे तो अब्राहम जीते जी ही अपने बरियल का जो प्लेस था वो भी ही परचेस्ड, पहले से ही, बिफोर ही डाई ही परचेस्ड, तो ही प्रिपेयर्ड। और ऐसे लोग हैं जैसे कि पॉल हैं, पॉल मतलब मृत्यु के बाद, मतलब जीते जी उन्होंने बोला कि इफ आई डाई इट्स अ प्रॉफिटेबल, मैं जा ही जा रहा हूं। बट क्या हमको ये कॉन्फिडेंस है? अगर नहीं है तो आज के आज हमको इस बात का परीक्षण करना पड़ेगा, इस बात का परीक्षण करना पड़ेगा कि हम वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर अपने जीवन के जो पुस्तक है उसमें हमारा नाम लिखे, नोट डाउन करें, तो हमारे मरने के बाद में जब वो फिल्टर प्रोसेस आएगा तो हमारा कंफर्मेशन रहे, ना कि वेटिंग लिस्ट में रहे। सो मैं यही मतलब प्रार्थना करता हूं सबसे कि मैं तो कर ही रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा अपना परीक्षण कीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द डेथ, क्योंकि आई डोंट नो कि अभी हम घर जा रहे हैं, कुछ हो गया तो क्या पता। तो वो आप लोग देखिए बस। आई थिंक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।